friends, I hope you are doing well. In this video, we will learn about the troubleshooting of IPsec tunnel, troubleshooting between Palo Alto and Cisco SA. We will learn how to troubleshoot the IPsec tunnel. The issue occurred due to some misconfiguration, and I will walk you through the steps to identify and fix it. We have two firewalls, Cisco SA, one side Cisco SA, another is Cisco Palo Alto. Both LAN subnets are mentioned here. This is our local subnet and this is a remote subnet. Both IPs, peer IPs, public IPs. Also, I have mentioned here. Okay, so this is our Palo Alto dashboard, and this one is one second, Cisco SA, and I have two VPCs. One second, I have two VPCs. Here you can see one second. Here you can see VPC 7 and it has one IP. VPC 5 I have configured the IP address 20.1.1.2 gateway and this one gateway. Now I am trying to ping. I also tried to capture the logs of outside interface of Palo Alto in Whiteshot. Here we can see in the details log. Okay, so I have enabled it. Now I'm trying to initiate the traffic from the one VPC to another VPC. So this is our remote IP and this one is the remote IP. Uh, Here we can see in the ISACM Internet Security Associates Key Management Protocol request and response, but not established properly. Okay, we have some commands for the Palo Alto and Cisco SA for the debugging purpose. Here I am putting the debugging commands on Cisco SA. HA platform platform protocol protocol and last one is timers. Okay, and one command is also available for the IPsec crypto IPsec sorry debug crypto IPsec. I will apply this command as well. Okay, so I have applied both commands. Okay, successfully. On Palo Alto, I have to um, is- enable the one second without debugging. Um, we have one daemon, IK daemon, IK MGR daemon. Uh, all IPsec related panel related logs store in the IK daemon. So मैं डायरेक्टली उस logs को देखने का ट्राई करता हूँ. टेल टेल follow yes, टेल follow yes.
आई के लोग आई के एम जी आर। तो ये डीमन होता है आई के एम जी आर। वैसे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल डीमंस है हमारे पास में। ये राउट राउट के लिए है, राउट राउट के लोग इसमें स्टोर होते हैं, एसडीएन के लिए है, एसएसएस के लिए है, ये एसएसएल वीपीएन के लिए है, ये सिस्टम डी है, ये सिसलोक डी है, ये टनल डी है। तो मैं डायरेक्ट आई के आईपीसी के रिगार्डिंग देखना है तो मुझे आई गई एमजीआर के लिए लोग देखने हैं। तो हेयर ये लाइव लाइव लोग होते हैं जो रियल टाइम में चल रहे होते हैं, मतलब रियल टाइम में जो डीमन रिसीव कर रहा होता है, ये वो लोग की इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपको स्टोर लोग देखना जो पास्ट में स्टोर हो चुके हैं, लाइक 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, तो आपको सिंपल कमांड टाइप करनी है विदाउट फॉलोअर्स के। तो ये जो कमांड है ये आपको शो करेगी जो स्टोर्ड लोग हैं आपके इस डीमन के अंदर, पालोल्टो के अंदर, इस डीमन के अंदर जो स्टोर लोग है वो ही शो करेगा। और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नो प्रपोजल चूजन, कोई प्रपोजल में मिसकन्फिग्रेशन है, हम उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे वो मिसकन्फिग्रेशन चूजन, नो प्रपोजल चूजन दिखा रहा है, मतलब कि जो फेज वन का जो प्रपोजल है वो ही अभी चूज नहीं हुआ है। ओके। आप यहाँ पे भी देख सकते हो जैसे कि आई की स्टेब्लिश हुआ ही नहीं है, रेस्पॉन्डर और रिक्वेस्ट के लिए ही अभी सॉरी इनिशिएट के लिए चल रहा है, आई के ही ऐसे इनिशिएट ही चल रहा है लेकिन अभी तक स्टेब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगर तो यहाँ पे हम देखें सिस्को ऐसे भी चल रहा है कि यहाँ पे ऐसे लाइफ टाइम आई के वजह टू, सॉरी, मतलब कि ये जो भी ओथ मैसेज टाइमर है ये फेज वन के रिलेटेड है। तो हम फेज वन को ही अभी रिगार्डिंग ट्रबल शूटिंग करनी है। मैं वापस से लाइव लॉग्स चला लेता हूँ यहाँ पे। लाइव लॉग्स के लिए वही फॉलोअर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एम पी लॉग के अंदर, आई के एम जी आर डीमन के अंदर। तो ये लाइव लॉग्स है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सेकंड चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये लाइव लॉग्स चल रहा है। तो हमारे पास जो है प्रपोजल डजंट मैच हो रहा है, प्लीज चेक crypto setting both side. Okay, now I am coming on the Cisco ASA and try to debug all. Okay, मैंने undebug all कर दिया सारे जो demons चल रहे थे, क्योंकि मल्टीपल मैं कमांड टाइप नहीं कर पा रहा था तो मुझे रोकना जरूरी था। तो now let's try to find the IKE IKE version 2 phase 1 information, मतलब header information. So show run crypto IKE version 2. Okay, तो here we can see okay, मैं पाल्टो पे भी लॉगिन कर लेता हूँ, ऑलरेडी लॉगिन है। मैं क्रिप्टो IKE क्रिप्टो प्रोफाइल में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे मैच कर लेते हैं कि इंक्रिप्शन AES 256 है, ओके है। यहाँ शाह है, हमारे यहाँ पे शाह है, ठीक है। यहाँ ग्रुप 14 है और हमारा ग्रुप 5 एंड 19 है। आप मल्टीपल ग्रुप ऐड कर सकते हो। अगर आपको एक सिंगल क्रिप्टो आई की क्रिप्टो प्रोफाइल बनानी है, और अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल, ये क्या होता है कि जब आईपी से टनल स्टेब्लिश होता है किसी भी क्लाइंट बिटवीन टू पीयर्स, तो जो हमारे पास में जो कॉन्फ़िगर्ड आईपी प्रपोजल है वो सारे सेट भेजे जाते हैं। उसमें से कोई एक चूज किया जाता है। अगर वहाँ रिमोट पीयर आईपी, लाइक क्लाइंट साइड में जो भी प्रपोजल्स कॉन्फ़िगर्ड है और हमारे कॉन्फ़िगर्ड आईपी क्रिप्टो से मैच अगर होता है कॉन्फ़िगरेशन, लाइक encryption, authentication and DH group and
तो उस प्रपोजल से वो मैच हो जाते हैं। बट सामने जो ऐसे पे जो हमारा ग्रुप 14 है, बट ऑन द पालो वी डोंट हैव 14 डीएच ग्रुप, तो वी शुड टू ऐड 14 डीएच ग्रुप so that the proposal will be choose. Okay, I'm committing configuration. Wait for some time. और गाइस मैं आपको बता दूं, इस मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि विदाउट डिबगिंग ऑन किए आप लाइव लॉग्स को चेक करने के लिए आप सिंपल आपको कमांड टाइप करनी है, टेल फॉलो यस एमपी लॉग की mgr डॉट लॉग। इसमें आपका जो भी लाइव लॉग्स स्टोर हो रहे हैं इस फाइल के अंदर, जो भी जनरेट हो रहे हैं वो लाइव लॉग्स को ही शो करेगा ये। तो विदाउट डिबगिंग आप लाइव लॉग्स को चेक करो, ये बेस्ट है। ओके, तो ओके, तो ये 99% हो गया, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सक्सेस रेट देख सकते हैं। 1 सेकेंड। ओके, तो ये स्टेब्लिश हुआ है। स्टेब्लिश ऐसे सिक्योरिटी एसोसिएशन स्टेब्लिश हुआ है। अब हम इसका वो चेक करते हैं, लाइक आईपी से टनल में जाते हैं, इसका देखते हैं कि ये रेड में शो हो रहा है, ग्रीन में शो हो रहा है। ओके, तो अब ये दोनों ग्रीन में आ गए हैं हमारे पास में। ये हमारा फेज 1 की स्टेटस है और ये हमारा फेज 2 का स्टेटस है। ओके, नाउ कमिंग ऑन दी फायर सिस्को ऐसे शो क्रिप्टो आई के ऐसे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। 1 सेकेंड, मैं फिर से कमांड रन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये एज ए इनिशिएटर है, स्टेटस रेडी है, ये रिमोट का पीयर आईपी है, और ये लोकल आईपी है जो एसे का आउटसाइड इंटरफेस है, और ये पालोटो का आउटसाइड इंटरफेस है। यहाँ पे पूरा दिखा रहा है ये हेडर इंफॉर्मेशन, क्या हम इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, क्या की साइज है, क्या हैश वैल्यू है, क्या ग्रुप है। 14 ग्रुप ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, पीएस के यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ बट हमारा 1 सेकेंड, मैं आपको फेज 2 के की भी इंफॉर्मेशन शो कर देता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या? ओके, तो फेज 2 इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे इनकेप्स हो रहा है। इनकेप्स हो रहा है, इट्स मीन कि यहाँ से ट्रैफिक बाहर जा रहा है, बट डिकेप्स नहीं हो रहा, मतलब बाहर से ट्रैफिक अंदर नहीं आ रहा, मतलब पालो अल्टो से ट्रैफिक जो आ रहा, रेस्पॉन्स आ रहा है वो नहीं आ रहा। यहाँ हम देखते हैं, ये आपका पालो अल्टो के साइड का बीपीसी है, और ये आपका एएससी के साइड का बीपीसी है। दोनों तरफ में आरटीओ आ रहा है। अब आप चेक करोगे अगेन, 1 सेकेंड, अगेन आप चेक करोगे तो यहाँ पे 66 हो गया, मतलब पहले 50 था, पहले 50 था, अब 66 हो गया। इनकेप्स हो रहा है, डिकेप्स नहीं हो रहा है। ये भी ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि डिकेप्स हो रहा हो तो किस एंड से इशू हो सकता है। अगर आपके एंड से इनकेप्स हो रहे हैं, मतलब कि आप बाहर पैकेट भेज पा रहे हो, डिकेप्स मीन्स कि आउटसाइड से, क्लाइंट साइड से हमारे ऑन प्रिम में ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो ये पालो अल्टो के एंड पे इश्यू है, तो हमें पालो अल्टो के एंड पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो, लोकल लोकल आइडेंटिटी है, रिमोट आइडेंटिटी है। यहाँ पे ये लोकल जो सबनेट है जो लैन में चल रहे हैं वो ये है, आउटसाइड का लैन सबनेट ये है। तो यहाँ से भी आप मल्टीपल थिंग्स को मैच कर सकते हो फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पज। ये हमारी एक्सेस लिस्ट है जो फॉलो हो रही है फॉर दिस टनल। ओके, नाउ कमिंग ऑन दी पालो अल्टो, तो हेयर वी कैन सी यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया, मतलब कि बोथ ग्रीन शो हो रहा है, स्टेटस शो हो रहा है। अभी भी हम चेक नहीं कर पा रहे। मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि राउट राउट के रिगार्डिंग कोई मेरे पास में लोग्स है क्या, तो टेल क्या था, अच्छा हाँ, एम पी, टेल एम पी लॉग राउट। ओके,